20 फरवरी 2025 को दिन सिक्किम राज्यको पुरानो राजभवनको आशीर्वाद हलमा मिजोराम अनि अरुणाचल प्रदेश राज्यका स्टेटहुड डे भव्य रूपमा मनाइयो। सिक्किम राज्यका राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो। साथै डेप्युटी स्पिकर टु अनरेबल गभर्नर श्री दिवास गौतम, पिआरओ इङ्ग्लिस मिस डिकी पेमा लेप्चा, सेन्ट्रल एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी रानीपुल, सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटी, कञ्चनजङ्घा स्टेट युनिभर्सिटीका अध्यापक अनि विद्यार्थीगण, राजभवनका अधिकारीगण अनि कर्मचारीगणहरूको समारोहमा उपस्थिति थियो। यस कार्यक्रमका सञ्चालक श्रीमती ममता अवस्थी पिआरओ टु अनरेबल गभर्नरले गरेका थिए। मिस डिकी पेमा लेप्चा पिआरओ इङ्ग्लिसले आफ्नो सम्बोधन भाषण राख्नुभयो। त्यसपश्चात मिजोराम अनि अरुणाचल प्रदेशका राज्यपालले आफ्नो राज्यवासीलाई स्टेटहुड डेको हार्दिक शुभकामनाको सन्देश दियो। It is with immense pleasure that I extend my warm greetings to you on this historic occasion of Mizoram Statehood Day. On this day, February 20th, 1987, Mizoram became the 23rd state of India, marking the beginning of a new chapter in its journey of progress, peace and prosperity. This day is a testament to the resilience, unity and aspirations of the Mizo people. It reflects the triumph of dialogue and democracy, leading to the signing of the Mizoram Peace Accord between the Government of India and the Mizo National Front on 30th June 1986. This is considered to be one of the most successful peace agreements in India's history. Since attaining statehood, Mizoram has made remarkable strides in education, healthcare, infrastructure and sustainable development. Our rich cultural heritage, vibrant traditions and harmonious society continue to inspire the entire nation. On this occasion, I would like to mention the central government's initiative, the Ek Bharat Shresth Bharat program. This aims to enhance mutual understanding and promote integration between people of different states and union territories to foster unity in diversity. This also enhances our identity as citizens of India. Therefore, in the spirit of Ek Bharat Shresth Bharat, I urge all of you to learn and be curious about others' traditions and customs in order to promote unity and integration without losing one's own cultural identity. As we celebrate this special day, let us renew our commitment to building a strong, more prosperous Mizoram and India. Let us work together in unity, preserving our heritage while embracing progress for future generations. I also call upon everyone to respect and protect India's diversities and contribute to our shared dream of developed India, that is Viksit Bharat by 2047. Thank you, Kalome. Today, we the people of Arunachal Pradesh are celebrating our 39th Statehood Day, a day of immense significance in our state's history. On this special day, I convey my best wishes to every Arunachali across the country. I also take this opportunity to express my deep appreciations for the people of the state that you are serving or residing in. I urge my brothers and sisters to be proud ambassadors of our state, its rich cultural heritage and enduring values. May the united spirit of our brave people of Arunachal contribute to the progress of the states that you reside and serve in. May your state of happiness permeate in numerous societies you live with. This day reminds us of the remarkable journey of Arunachal Pradesh, from the struggles of our forebears to the triumphs of progress and modernity. Our path has been paved with resilience, determination and unity, shaping the state into a beacon of growth and harmony. Arunachal Pradesh has taken significant strides in various sectors, setting new benchmarks for development. Our progress in human development and happiness indices reflects the rising quality of life of our people. Today, we celebrate not just our past,
but also the aspirations that drive us forward. As we commemorate the momentous occasion, I appeal to my fellow citizens of India, let us reaffirm our commitment to unity, cooperation and progress of our great nation. In keeping with the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat, Arunachal Pradesh will continue to contribute towards our collective vision of Viksit Bharat. Thank you. Jai Arunachal, Jai Hind. मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों, प्रबुद्धजनों, नागरिकों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। भारत की विविधता में एकता का जश्न मनाने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 2023 में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप देश भर के राजभवनों में और राजनिवासों में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपने देखा होगा, हम यहाँ सिक्किम में बैठे हैं और यहाँ सिक्किम में ही हमारे अरुणाचल के बंधु, मिजोरम के बंधु अपने अध्ययन हेतु आए हुए हैं। और जो प्रोग्राम आपने देखा, यानी सभी प्रदेशों की, दोनों प्रदेशों की झलक आपने देखी। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का एक विश्लेषण है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत पूरा एक है और विश्व में श्रेष्ठ है, इस भावना से आज ये कार्यक्रम है। भारत विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, बोली और संस्कृति की भूमि है। हमारे रहन सहन, खान पान भी भिन्न भिन्न है, परंतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्पना राष्ट्र की एकता, अखंडता को मजबूती प्रदान कर रही है। यह हम सभी की भारतवासियों को जोड़ने तथा एक राष्ट्र की भावना को बढ़ावा देने का सराहनीय कदम है। इससे देश की एकता और राष्ट्रता, अखंडता को बल मिलता है। अभी हम भाषा समझे या नहीं समझे, लेकिन जो देखा बच्चों का डांस, तो स्वाभाविक मन में आया, उत्साह आया, ताली भी बजी और सबका मन भी प्रसन्न हुआ। अलग अलग प्रांतों में रहने के बावजूद हम सब एकजुटता के साथ साथ विश्व बंधुत्व की भावना से भरे हैं। हम सब भारतीय हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 38 साल पहले मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भारत के 23वें और 24वें राज्य बने। मिजोरम को 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। 1986 में भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के बाद यह भारत का 23वां राज्य बना। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश को पहले हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा कहा जाता था। 1972 में नेफा एक केंद्र शासित प्रदेश बना और 20 जनवरी 1986 में भारतीय संविधान के 55वें संशोधन के बाद भारत का 24वां राज्य बना। राज्य बनने से पहले राज्य को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब देश के सबसे शांतिपूर्ण राज्यों में अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वोत्तर भारत के अष्टलक्ष्मी विभिन्न अंग मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जीवंत संस्कृति, शांति और सौहार्द का लिए प्रसिद्ध है। पहले शुरू में बोला जाता था 7 सिस्टर और सिक्किम एक ब्रदर है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी इन 8 प्रदेशों को एक नया नाम दिया है, अष्टलक्ष्मी। तो आप हमारे अष्टलक्ष्मी के 2 अंगों के सदस्य मिजोरम और अरुणाचल के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। अरुणाचल प्रदेश जहां सूरज की पहली किरण इस राज्य की सुंदरता को और भी निखारती है। यह पूर्वोत्तर भारत का एक अत्यंत खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप में समृद्ध राज्य है। यहाँ का तवांग मठ, जो भारत के सबसे बड़े मठों में से एक है, बौद्ध धर्म के लिए आध्यात्मिक स्थल है। वास्तुकला की सुंदरता का भी एक अद्भुत नमूना है। शेला दर्रा, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, इत्ता किला राजधानी में स्थित एक प्राचीन किला है जिसे अहोम शासकों ने बनवाया था। और यह राज्य ऐतिहासिक धरोहर का
धरोहर का एक झलक प्रदान करता है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती राज्य है। मिजोरम म्यांमार, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और तिब्बत से घिरा है। बावजूद इसके दोनों राज्यों देश की अखंडता को बनाए रखने और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने में तत्पर रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक और संकल्प लिया है कि खाली सेना से ही सीमा सुरक्षित नहीं होती। सेना के जो एकदम अंतिम छोर पर जो हमारा पहला गांव है, जिनको हमने पहले अंतिम गांव कहते थे, अब उसने नाम दिया पहला गांव और उसको वाइब्रेंट विलेज का नाम दिया है। और उस गांव में सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोड कनेक्टिविटी हो, ये सारी व्यवस्था बड़ा भारी बजट के साथ सिक्किम प्रदेश में 46 ऐसे विलेज है जो वाइब्रेंट विलेज है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में भी होंगे, इसी तरह आपके मिजोरम प्रदेश में भी होंगे। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के सभी भारतवासी जुड़े, एक दूसरे को समझे और एक दूसरे की भावना का निर्माण हो। इसी कारण ये उत्सव, ये दिन मनाया जाता है। हमें अपनी समृद्ध संस्कृति का पालन करते हुए औरों की संस्कृति का भी सम्मान करना चाहिए। अरुणाचल वाले मिजोरम का सम्मान करें, मिजोरम वाले अरुणाचल का सम्मान करें, ये हम सब की भावना रहनी चाहिए। भारत की विभिन्नता, भिन्न भिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति, जाति अनेक मायनों में अपनी पहचान रखती है। इन सभी संस्कृतियों के साथ साथ उनके विशिष्टताओं को समझना और सम्मान करना भारत की एकता के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और पूरे देश में शांति और समृद्धि बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम को सक्रिय रूप से भाग लेना हम सब की आवश्यकता बनती है। और मैं आज आप सबसे भी निवेदन करूंगा, जब कभी भी मेरे प्यारे बच्चे, चाहे वो मिजोरम के हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश को, अगर उनको कोई कार्यक्रम करना हो तो राजभवन सदैव आपके स्वागत के लिए तैयार रहेगा। हम सब लोग इसका उपयोग करें, हम सब एकता दिखाएं, या बैठे या आए, यहाँ की संस्कृति को भी समझे। सिक्किम में पढ़ रहे हैं तो सिक्किम की संस्कृति को भी हम समझे, ये हम सब की भावना होनी चाहिए। जय सिक्किम, जय हिंद। अन्तिममा कल्चर डिपार्टमेन्टका कलाकारहरू साथै विद्यार्थीगणहरूले रङ्गारङ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। Nam so kan thang a se
एका छिराई माया लाउँदै हा हल्लम हल्लम